हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहा बड़े पाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जा कामल रप सोग अगन तिस जन न व्याप सागर तरिया साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे पाग पेटे गुरुदेवा पाग पेटे गुरुदेवा सागर तरिया कादू संगे निरपो नाम जपो हर रंगे परतन दो की पाप न पेड़े जम जंदार न आवे नेड़े कृष्ण अग्न प्रभ आप बजाई नानक उदर प्रभ सुनाई अमर हो जांदन अमृत दे पीवन वाले 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 अमर हो जांदन अमृत दे पीवन वाले
गुरु बाबा जी दी पावन पवित्र हजूरी च बैठी गुरु रूप गुरु सवारी साध संगत अपने समय ते स्वासा नूं सफलियां करन वास्ते माई और भाई सारे ही प्रेमी जन दूरों नेड़ियों आपो अपने दुनियावी धंधे धंधारां तो छुटकारा पा करके जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विच पुज के अपनी जिंदगी दीयां अपने जीवन दीयां अमूलक घड़ियां नूं सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच लगा के सफलियां करन दी खेचला यानी कृपालता कर। तां ते आओ थोड़ा जिहा समा सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे चरनां विच लाइए। अमृत सासों दुनिया ते जो आया उन्हें चले जाना,
दुनिया दुनिया ते जो आया उन्हें एक दिन मर जाना है। सबना मरना आया विछोड़ा, सबनाहा पुछो जाए सियाणे अगे मिलन कन्नाहा। अमृत अमृत शब्द अगू ऐड़ा कट दिता जाए मृत रह जाता। मृत न मौत दा आड़ा संसार है, मौत दा घर है। मृत मंडल जग साजिया, जू बालू घर बार, बिनसत बार न लागी जो कागद बंधार। ए संसार मौत दा घर है, मरण लिखाए मंडल में आए। बंदा जदों दुनिया ते जन्म लैके आउंदा पहला इहदा मरण समा लिखिया जांदा। जित दिहाड़े धनवरी साहे ले लिखाए, मलक दी कन्नी सुनी दा मूँह विखाले आए। गुरु की संगत इनू जदों मात लोक विच भेजिया जांदा है, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਅਮਕੇ ਅਮਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਮਕੇ ਅਮਕੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। इस तरह साध संगत जी जीव जब संसार से आउंदा है ये सब तो पहला मरना लिखा के आउंदा है। मर सबना ने जाना है। कोई ऐसा भी तरीका है कि असी ना मरीए? कहो वाहिगुरू, मर सबना ने जाना है। मर गुरु साहब ने फैसला दे दिता है, सबना नू मरना पैना है, सबना नू मरना पैना है, सबना नू मरना पैना है। जो दुनिया से आया है ओनू जाना पैना है। सबने मरना आया, पूछो जाए दिया ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਸਭਨਾ ਮਰਨਾ ਆਇਆ ਵਿਛੋੜਾ ਸਭਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ ਸਿਆਣਿਆ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਕਨਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ? ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮ ਆਫਟਰ ਡੈਥ ਵੀ ਮੈਟ ਵਨ ਅਨਦਰ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਇਹ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਸਭਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਐੜਾ ਅੱਖਰ ਅੱਗੇ ਲਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ
ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਹ ਤੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਉਮਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5.5 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 74 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ 51 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਜਿਹਦੀਆਂ 4 ਬੀੜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਬੇਰ ਖਾ ਕੇ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ ਖੰਡੇ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੇ ਆ। ਪਾਏ ਵਿੱਚ ਪਤਾਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾਸੇ ਘੁਲ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਰੰਗਣ ਚ ਰੰਗਿਆ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਝਾਕਦਾ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪੂਤ ਵਿਆਹ ਕੇ ਨਾ ਇਸਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਡੋਲਾ ਖੋਲਿਆ। ਇਹ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਪਟ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਇਸ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਅਬਲਾ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਪਰ बेटी को बेटी जाने पर स्त्री को मात बखाने पर नारी स्यो निहो लगावे गोबिंद सिंह ओ सिख नहीं भावे। खालसा जी एक समय गुरु साहब के चरणों में सिक्खां ने बेनती करके पूछा सी महाराज तुर्क साडियां धीआं भैणां कई बारी बन के लै जांदे ने, महाराज जे तुर्कां दीआं धीआं भैणां साडे हत्थ विच लग जाण ते खालसे नूं की हुक्म है? गुरु साहब ने आख्या जी प्रेमियों असीं खालसे नूं जती बनाया। एका नारी जती होए पर नारी धी भैण वखाणा। गुरु का सिख
आप तू वड्डी मां, अपनी उम्र दी भैन, आप तू छोटी बच्ची करके जानदा। गुरु साहब लगे कहन प्रेमियों तुसीं कहंदे हो कि जे साडे हत्थ विच तुरकां दीयां धीआं भैणां लग जाण असीं की करिए। गुरु साहब ने आख्या जी तुसीं ओह वरतारा करना ਸਿੰਘੋ जो वरतारा अपनियां मावां भैणां ते धीआं नाल करदे हो। माफ करना गुरु साहब लगे कर प्रेमियों उन्हां नूं अपनियां मावां भैणां ते धीआं दे बराबर समझ के उन्हां दे घर तक पहुंचाउणा, क्योंकि अभी खालसे नूं जती बनाया। हजूर ने कहा प्रेमियों एक तुहानूं वचन दसदे हैं। कहो वाहिगुरू तुहानूं एक वचन दसदे हैं। तुसीं पुछिआ कि पराईआं औरतां नाल असीं की किहो जिहा सलूक करिए, तुरकां दीआं धीआं भैणां नाल की सलूक करिए। गुरु साहब लगे कहण प्रेमियों जिहड़ी गल तुसीं अज सानूं पुछी है ना ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ पिता गुरु तेग बहादुर जी ने मैनू कही सी। सुध जब ते हम धरी जदों तू लैके असीं होश संभाली खालसा दी वचन गुरदे हमारे। मेरे पिता गुरु तेग बहादुर जी ने मैनू एक वचन दृढ़ कराया सी। केड़ा? पूत यह प्रण तोहे है मेरे पुत्र, ये प्रण तेनू तू सारी जिंदगी याद रखना। ये प्रण तोहे माफ करना, ये प्रण तू अपने मन विच पक्किया रखना। जब लग घट प्राण थारे जदों तक तेरे शरीर दे विच प्राण ने। इस बचन नूं याद रखना है। किहड़े बचन नूं? निज नारी के संग ने तुम खूब बढ़ाइयो। अपनी औरत दे नाल वध तों वध प्रेम करना है। पर जिथे पराई औरत दा सवाल है पर नारी की सेज भूल सुपने होना जाइयो। ਸਿੰਘੋ मेरे पिता ने आख्या जी पराई औरत दा ध्यान, पराई औरत दी सेजा दा ध्यान आ बेटा तैं सुपने दे विच भी नहीं करना। फिर गुरु साहब लगे कहन ਸਿੰਘੋ पर नारी के भजे रावण दा सिर कटाए। रावण दे 10 सिर सन, 10 ते 10 सिर सन रावण दे। माफ करना गुरु की संगत पर जदों श्री रामचंद्र दी सीता नूं चुरा के लै गया, माफ करना वो 10 सिरां वाला रावण ਉਹਦੇ 10 सिर कट्टे गए। ਸਿੰਘੋ साडा तां सिर ही एक है, तुहाडा तां सिख ही एक है। माफ करना हजूर ने इहो जिहा उपदेश दिता कि इधर अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी दे पवित्र ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬਾ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਆਖਿਆ ਸਿੰਘੋ ਪਤਾ ਕਰੋ किस अबला ते विपता बनी है, कौन मुसीबत दी मारी। कोई धी भैन इस जंगल दे विच रो रही है। दौड़े फरके सन, अखां दे विच खून आ गया थी। अगे वध के की वेखिया बाबा जी ने कुछ दुष्ट एक नौजवान भैन खालसा दी जिहदा डोला जबरदस्ती लई जांदे ने। ये डोले विच बैठी अपने सिर दीआं बावरियां केस खंडार खंडार के रो रही है। अगे वध के बाबा जी ने बोलिया बोले सोनिहाल दा जंकारा पाया, खंडे दी मुट्ठी नूं हथ खिंचिया, म्यान दे विचों खंडा खालसा दी माफ करना इन्हां तुरकां दे उत्ते डिग जा पए ने। माफ करना 2-3 तुरक दित्ते ने झड़का, बाकी भजदिआं नूं राह नहीं लभा खालसा दी। आख्या जी अमर शहीद बाबा दीप सिंह ने बुला कौन है बीबा तू, ये दुष्ट कौन ने। उस मौके चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की ने आख्या जी बाबा जी बड़ी गलती की मेरे पिता ने जो मैनू एक राजपूत दे लड़ लाती। किन्नी चंगी गल हुंदी जेकर मेरा पिता मैनू एक सिख दे लड़ ला देंदा, घट्टो घट मेरी इज्जत तां बची रहिंदी। खालसा जी माफ करना मेरी इज्जत नूं ना कोई हथ पाउण दा हिया ना करदा। आख्या जी चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की ने बाबा जी इंज करो मैनू अपनी दासी बना के रखो, गोली बना के रखो, तुहाडे चरनां 'च रह के सारी जिंदगी तुहाडी सेवा करांगी। अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी लगे कह लगे ओ बीबा की गल्लां कर रही है, दुनियावी रिश्ता करके भावें तू चंबा दे रियासत दे राजे दी लड़की है, पर धर्म दा रिश्ता करके तू दीप सिंह दी सकी मां भैन ते सकी बेटी तू उत्ते है। चल बीबा तेनू तेरे घर तक पहुंचा दीए। बाबा दीप सिंह जी महाराज ने जथे दे ਸਿੰਘਾਂ नूं आख्या जी ਸਿੰਘੋ साडा चरण नहीं रहा, साडा जीवन नहीं रहा, साडे विच शक्ति नहीं रही, अंदर खाली ना बिन ओ सिख गुरु के वचन के मुताबिक चलते सन। अमर चक के गुरु की संगत बाणी की नाम की कमाई करते सन। बाबा दीप सिंह ने आख्या जथे दे ਸਿੰਘੋ इंज करो इस चंबा दे रियासत दे राजे की लड़की नूं इहदे घर तक पहुंचाया जाए। जथे दे ਸਿੰਘਾਂ ने फैसला किया कि इस
चंबा के रियाज के राजे की लड़की वाल जो भी देखता है ਉਹਦਾ मन मोहा जाता है, लुभाएमान हो जाता है। ऐसा कौन कौन सिख अगे ਵਧੇ जो इस चंबा के रियाज के राजे की लड़की नूं ਇਹਦੇ घर तक पहुँचा के आवे, छड्ड के आवे। जथे दे सिंघां ने फैसला किया यह भी ड्यूटी बाबा दीप सिंह जी की लाई जाए। जथे दे सिंघां ने आख्या कि बाबा जी इंज करो, इस बीबा नूं ਇਹਦੇ घर तक पहुँचाउण दी ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ भी तुसीं निभाओ। आख्या सत बचन खालसा जी। अमरशीर बाबा दीप सिंह जी कह रहे सन चल बीबा तेनू तेरे घर तक छड्ड आईए। नितम करते जा रहे ने, बाणी पढ़ते जा रहे ने। खालसा जी जदों चंबा के रियाज के राजे की लड़की नूं बाबा दीप सिंह जी ਇਹਦੇ घर छड्ड के आए ना, खालसा जी रस्ते जो घर छड्ड के आए तो पास तो पूछया जी खालसे ने बाबा जी नो डाउट ये कोई शक नहीं कि जेड़ा चंबा के रियाज के राजे की लड़की वाल वेखदा है वो इन्नी खूबसूरत है, ਉਹਦਾ मन मोहा जाता है, ਉਹਦਾ मन लुभाएमान हो जाता है। पर बाबा जी किरपा करके ये दसो जदों तुसी चंबा के रियाज के राजे की लड़की नूं ਉਹਦੇ घर छड्डण वास्ते गए, बाबा जी तुहाडे मन की अवस्था किहो जी सी? बाबा जी की चंबा के रियाज के राजे की लड़की की सुंदरता का तुहाडे मन से भी कोई असर होया? अमर शहीद बाबा दीप सिंह जलाल च आ गए, लगे कहनो खालसा जी की घोची गल कर दी। चंबा के रियाज के राजे की लड़की की सुंदरता का साडे मन से की असर होना सी? आख्या जी सिंघो उधर मिट्टी का बुत सी, इधर कलगीधर का पुत सी। कलगीधर के पुत के मन से भला खालसा की मिट्टी के बुत का की असर होना सी? 87 साल की उम्र थी खालसा जी। माफ करना गुरु की संगत अमर शहीद बाबा दीप सिंह महाराज खालसा की एली दिली दमदमा साहब के इलाके में रिहा करते सन। शाही फौजा जमाल खां जरनैल दी खालसा जी माफ करना गुरु की संगत जमाल खां जरनैल दी कमान के थले हरमंदर साहब की नरादरी करने वास्ते खालसा जी हरमंदर साहब नूं ढा ढेरी करने वास्ते जमाल खान दी साध संघ की कमान के थले सात फौजा हरमंदर साहब नूं वधियां आ रही ने। आख्या जी बाबा दीप सिंह नूं किसी ने जाके बाबा जी शाही फौजा लाहौर तो चढ़ के हरमंदर साहब वधियां आ रही ने। डोले फरके सन, अखां दे विच खून उतर आया सी, पाया सी खंडे की मुट्ठी नूं हथ, खिंची कार। आख्या सिंघो अज खंडे की कार तू अगे ओ लंघियो जिन्हों अपनी जिंदगी ते जीवन की लोड़ नहीं। खालसा जी गुरु के मर जीवड़े सिख छाला मार मार के पार हो गए सन। खालसा जी माफ करना 500 सिंघां दा जथा ये गुरु की संगत हरमंदर साहब वाल नूं वधदा जा रहा सी। माफ करना ते रस्ते दे विच बाबा दीप सिंह जी लगे कह सिंघां नूं जथे दे सिंघां नूं कहंदे ने कहंदे रो सिंघो अज असीं सिंघो कहने साडे कोल अमृत रहना नहीं। अज सिंघो असीं कहने आ शराब छड्ड दईए साडे कोल रिहा नहीं जाना। एडा वड्डा प्रण कीता सी बाबा दीप सिंह जी महाराज ने। आख्या जी ओ सिंघो मैदाने जंग च लड़दे लड़दे जे भाना वरत भी गया, जे दीप सिंह शहीद भी हो गया, माफ करना दीप सिंह मरण तो बाद भी हरमंदर साहब दी पवित्रता बहाल रखने वास्ते दीप सिंह लड़ेगा। खालसा जी एडा वड्डा प्रण, एडा वड्डा प्रण कि दीप सिंह मरण तो बाद भी हरमंदर साहब की पवित्रता वास्ते लड़ेगा। खालसा दी भावी ने प्रगट होकर आख्या जी दीप सिंह तू तो यह कहंदा कि मैं मरण तो बाद भी हरमंदर साहब की पवित्रता वास्ते लड़ांगा। भावी ने आख्या सी दीप सिंह मैं तैनू हरमंदर साहब नहीं पहुंचण देना। पर बाबा दीप सिंह ने आख्या भावी कलगीधर दे सिख नूं कौन रोक सकता? कलगीधर दे सिख नूं कौन रोक सकता है? भावी तू मैनू हरमंदर साहब जान तू रोक नहीं सकती। खालसा दी पिंडां दे विच जिवें जिवें गुरु के सिखां नूं पता लगदा सी गुरु की संगतां गुरु के सिख मौत के कफन बन के इस मरजीवड़ियां दे जथे दे विच खालसा दी माफ करना तक शामिल होंदे जा रहे सन। मारो मार करदे एक गुरु के सिख खालसा दी हरमंदर साहब दे इलाके विच पुजे ने। जो नरे दीन के होत सोई पूरा दीन के होत सोई पूरा दीन के सोई पूरा
खालसा जी गुरु के लाना दा तुर्क फौजा दे नाल बड़ा गह के मुकाबला होया। गुरु की संगत कई मावां दे पुत्र जैना दे खेड़ गए। खंडियां दी खड़ खड़ ने कईयां दा पढ़ता कीर्तन सुहेला। कलगीधर दे पुत्रां ने पहलिया रंग मजीठी चौदा खालसा जी। खालसा मर के भी नहीं मरदा, ऐसा सिख पैदा किया कलगीधर पातशाह ने खालसा जी। आओ गुरमुखो जेड़े कहंदे ने अमर दे छकण वाले अमर किवें हो जांदे ने। माफ करना कगु ममा पाजिया अरने सांदे साओ जे जो मने सूरमा जूचन तो साओ। गुरु प्यारियो खालसे ने तुर्क फौजा ने पैर हिला के रख दिते। मैदानी जंग च लड़दे लड़दे बाबा जी का मुकाबला जमाल खान दे नाल होया। खालसा जी माफ करना गुरु प्यारियो, इधर बाबा जी ने ओ समा हो आया जदों बाबा जी ने अपने खंडे का वार किया। माफ करना उधर जमाल खान ने अपनी तलवार का वार किया। बाबा जी के खंडे के वार दे नाल जमाल खान का सिर गाजर के वांगू कट के भुंजे जा पिया। जमाल खान की लाश धरती से इंज डिगी जिवें कोई कंध डिगदी। खालसा जी इधरों जमाल खान के तलवार के वार नाल अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी का पवित्र शीश धरती जुदा हो गया। एक सुभाविक गल है, जिस फौज का जरनैल न रहे उस फौज का हौसला ढेंडी कला विच जाना, ये एक सुभाविक गल है। जिस जथे का जथेदार न रहे उस जथे का हौसला ढेंडी कला विच जाना सुभाविक गल है। जदों बाबा जी का पवित्र शीश माफ करना धरती जुदा हो गया, जथे दे सिंघां दे हौसले ढेंडी कला चले गए सन। खालसा जी इधरों होनी ने प्रगट होकर फिर आख्या क्यों दीप सिया, मैं तेनू आख्या कि ना मैं तेनू हरमंदर साहब नहीं जान देना। अमर शहीद बाबा दीप सिंह दे पवित्र मुखार बिंदु आवाज निकली, ऐ भावी गुरु के सिख नू हरमंदर साहब पहुंचण तो कौन रोक सकता। खालसा जी इधर जथे दे सिंघां ने आख्या बाबा जी आप जी तो कही दी असी मरण तो बाद भी जेकर भाड़ा बच गया असी मरण तो बाद भी हरमंदर साहब की पवित्रता वास्ते लड़ांगे। आख्या बाबा जी तुसीं तां तुहाडा साथ छड्ड के तुर चले हो। बाबा जी के पवित्र मुखार बिंदु आवाज निकली, आख्या जी खालसा जी साडे सीस नूं साडे खब्बे हाथ दी तली ते टकाता जावे। खालसा जी उत्थे मौत कित्थे रह गई सी, अमर दी शक्ति सी। खालसा जी बाबा जी के पवित्र शीश नूं बाबा जी के खब्बे हाथ दी हथेली ते टकाता गया। खालसा जी आह शीश तली ते सी, एक हाथ विच खंडा सी। खालसा जी धड़ लड़दा जा रहा सी। तुर्क फौजां नूं भाजणा पा पईआं। तुर्क फौजां नाले लाहौर वाल नूं भजियां जांदियां सी, दौड़ियां जांदियां सन ते नाले तुर्क फौजां पिछे मुड़ मुड़ के वेखदियां जांदियां सन किते सिख कटिया सिंह साडे पिछे ते नहीं दौड़िया आ रहा। खालसा जी तुर्क एक दूजे नूं कह रहे सन ओ पता नहीं है सिखां विच शक्ति कित्थों आ गई है, ए मरण तो बाद भी नहीं मरदे, सिर कटिया गया है सिंह फिर भी तुरिया आउंदा। नाल दे तुर्क एक दूजे नूं कह रहे सी पता नहीं इन्हां दा गुरु खबर की पला गया बाटे दे विच खोल के की पला गया बाटे दे विच खोल के खबर की पला गया बाटे दे विच खोल के की पला गया बाटे दे खोल के पला गया बाटे दे खोल के
बोल के खबर की ला गया बाटे बीच बोल के गुरमुखो तुर्क फौजा डरदियां लाहौर जा वड़ियां सन मन करना नवाब पुछदा सी सूबा लाहौर पुछदा सी अपने जरनैलां नूं ओ थोड़े जे सिख तुसीं उन्हां तों डरदे मारे दौड़ आए हो आहा जरनैलां ने आख्या सी नवाब खान जूंदियां नूं ते कोई मारे भला मरिया नूं कौन मारे आख्या सी नवाब खान जूंदियां नूं ते कोई मारे भला मरिया नूं कौन मारे आख्या सी नवाब खान सिखां दे धड़ लड़दे आउंदे ने धड़ सिखां दे धड़ लड़दे आ रहे ने खालसा दी ते अमर दी शक्ति दी खालसा दी अमर हो जांदे ने अमृत दे जीवन वाले अमर हो जांदे ने अमृत दे जीवन वाले
जरा ध्यान देना खालसा जी, अज साडा जीवन किधर तुरिया जा रहा। गुरमुखो, कलगीधर पातशाह दीयां बख्शिशां सिखो साथ संभालियां नहीं गईयां। किना किना दा जिक्र करिए। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मणि सिंह आहा श्री हरमंदर साहब के मुख सेवादार सन, ग्रंथी सन। समय का नवाब जकरिया खान खालसा जी, हरमंदर साहब की दिवाली आ गई खालसा जी। दिवाली के त्योहार से समय के हुक्मरान ने, नवाब ने, जकरिया खान ने गुरु रामदास जी की गोलक दे विचों खालसा की कुछ माया टैक्स वजू, कर वजू या जजिए वजू मंगी थी। आखिया जी जकरिया खान ने भाई साहब और भाई साहब कुछ माया कुछ पैसा हरमंदर साहब की गोलक दे विचों कर वजू या टैक्स वजू शाही हुकूमत के खजाने वास्ते भेजा जाए। आख्या जी गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मणि सिंह होरां ने आख्या जी नवाब खान, गुरु रामदास जी गोलक विच ऐसा कोई पैसा नहीं जो शाही खजाने वास्ते टैक्स या कर वजू दिता जाए। बड़ा जोर लाया थी नवाब खान ने, पर भाई साहब होरां ने इको गल कही थी। आख्या जी नवाब खान, ऐसा कोई पैसा नहीं जो टैक्स वजों शाही खजाने वास्ते दिता जाए। नवाब जकरिया खान ने आख्या जी भाई साहब भाई मणि सिंह होरां नूं, आख्या जी भाई साहब जेकर कुछ माया टैक्स या कर वजों शाही खजाने वास्ते ना दिती, याद रखना तुसी बड़े बड़े तसीहे दे के शहीद किए जाओगे खालसा जी। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मणि सिंह और आख्या जी नवाब खान, मेरा शरीर तेरे हवाले है, इनू कट ले बड ले, इहदा टुकड़े टुकड़े कर दे जो करना करना है। पर सतगुरु गुरु रामदास जी गोलक विच ऐसा कोई पैसा नहीं जो शाही हुकूमत के खजाने वास्ते भेजा जाए। खालसा जी भाई साहब दे फतवे लाए गए, भाई साहब दे फतवे लाए गए। फतवे की निकले सन खालसा जी, भाई साहब होरां ने शरीर का बंद बंद कट के खालसा जी छोटे तो छोटा करके शहीद किया जाए। देखने वाली गल है खालसा जी, उधर से भाई साहब बाबा दीप सिंह जी का सीध धारतू बड़ा लड़ता जा रहा थी, उधर का धड़ खालसा जी सिर तू बड़ा लड़ता जा रहा थी। इधर जरा ध्यान देना, जे अमृत की शक्ति नहीं तो कोई शराब की शक्ति है खालसा जी, जरा ध्यान देना। भाई साहब का फतवा निकलिया थी, भाई साहब उन्होंने शरीर का बंद बंद कट के छोटे तो छोटा करके कत्ल कर दिता जाए, शहीद कर दिता जाए। खालसा जी खालसे ने भाई साहब भाई मणि सिंह होरां नूं आख्या जी बाबा जी तुहाडे शरीर की बड़ी लोड़ है। इट इज द डायर नीड ऑफ ए समय, इट इज द डायर नीड ऑफ टाइम। इस समय की बड़ी सख्त जरूरत है, तुहाडे शरीर की बाबा जी बड़ी लोड़ है। जे गुरु रामदास जी गोलक विच कोई पैसा शाही खजाने वास्ते टैक्स या कर वजों नहीं देना, आख्या जी खालसे ने बाबा जी तुहाडी बड़ी लोड़ है, हुक्म करो हुक्म करो, तुहाडे बराबर सोना तोल के समय की हुकूमत नूं दे दीए। अजे तुहाडी बड़ी लोड़ है। भाई साहब भाई मणि सिंह और आख्या जी चंगा तुहाडियां की मजबूरियां ने, जे तुसीं अमृत छक लोगे तुहानूं रोटी खाण नूं नहीं मिलेगी। कहो वाहिगुरू, जे तुसीं अमृत छक लोगे तुहाडे कारोबार नहीं चलणगे, कि जे तुसीं अमृत छक के गुरु वाले बन जाओगे और तुहाडे कारोबार तक की खालसा जी कारोबार तुहाडे पैरों में रोलणगे जे तुसीं गुरु दे बन जाओगे। खालसा जी आख्या जी खालसे ने बाबा जी तुहाडे शरीर के बराबर सोना तोल के दे देने, तुहाडी बड़ी लोड़ है।
गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मनी सिंह लगे कण प्रेमियों, शरीर तो गंदगी की कोठड़ी है, दे गंदगी की कोठड़ी हर हीरिया की खान, सिरदियां दे प्यारा मिल जाए सौदा सस्ता जान। आख्या जी खालसा जी शरीर चलिया जाना, ये रहना नहीं। जे सतगुरु गुरु रामदास जी के लेखे लग जाए तो चाहिए भी की है। आहा जलाद नूं हुक्म होया भाई साहब भाई मनी सिंह होरां जी दा बंद बंद करके इन्हां नूं शहीद किया जाए। जलाद अगे वधिया, जलाद ने टोके की धार की तिखी। जलाद की वेखदा बंदा बड़ा बेखौफ है, बंदे नूं डर है ही नहीं। आहा बंदा बड़ा निडर है, बड़ा भोला बंदा है। जलाद ने सोचिया जे भाई साहब होरां नूं छोटा छोटा करके कतल किया, शहीद किया, इन्हां दे शरीर का अंत होने लगे, समा ज्यादा लगेगा। भाई साहब होरां नूं दुख का सामना भी ज्यादा करना पवेगा। जलाद ने सोचिया एक टोका कलाई ते मारूंगा, दूजा कोणी ते, तीजा मोढे ते, कंधे ते कह लो। जलाद अगे वधिया, जलाद ने मुंडी रख ली थले, भाई साहब होरां दे पंजे विच पंजा मिलाया। तुहाडा की ख्याल है कि भाई मनी सिंह पंजे च पंजा मिला रहे सन? गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मनी सिंह मौत दे नाल खालसा दी पंजा मिला रहे सन। खालसा दी जलाद ने पंजर विच पाया पंजा, मार करना वट के मारिया टोका भाई साहब होरां दे खब्बे हाथ दी कलाई ते। जदों टोका मारिया तो भाई साहब हस पे। आख्या जलादा आ की कीता? जलादा ये की कीता? आख्या जलादा तेनू हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा, मैनू हुक्म होया बंद बंद कटाउण दा। जलादा मैं बंद बंद कट्टना, मैं बंद बंद कटाउणा। बंद बंद कट्टण वाले जलाद बंद कलाई तो शुरू नहीं हुंदा, बंद बंद कट्टण वाले जलाद बंद ते पोटे तो शुरू हुंदा है। भाई साहब आख्या बंद बंद कट्टण वाले जलाद तू मैनू छोटे तो छोटा करके कट। बंद बंद कट्टण वाले जलाद मैं तेरा हौसला वेखदा, मैं तेरा जिगरा वेखदा कि बंद बंद कट्टण वाले किवें हथ हथ के बंद बंद कटदे ने। जलादा तू मेरा जिगरा वेख कि बंद बंद कटाउण वाले किवें हथ हथ के बंद बंद कटाउंदे ने। खालसा जी जलाद दा शरीर ठंडा पै गया सी, जलाद जलाद गुना छड़ गया सी, तो टोका डिग पिया सी। नवाब जकरिया खान ने आख्या जलादा की गल? आख्या जलाद ने नवाब खान मेरे विच हिम्मत नहीं रही, मैं भाई साहब का बंद बंद कर सका, मेरा शरीर ठंडा पै गया, मेरे विच हिम्मत नहीं रही। दूजे जलाद नूं हुक्म होया भाई साहब होरां दा बंद बंद कट्टण दा। जलाद ने कोल टोकरा रख लिया। बहुत असीं लोग पंजाब के रहने वाले हैं, जिवें जिमीदार पिंडां दे विच पट्ठियां दा टोका करदे ने, पट्टे टुकदे ने, पट्ठियां नूं कटदे ने। इधर जलाद ने फड़िया एक हाथ विच टोका, कोल टोकरा रख लिया, माफ करना। इधर गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मनी सिंह होरां ने कीते ने सुखमनी साहब दे पाठ शुरू। खालसा जी सिमरो 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 पावो सकले तन है बचावो, सिमरो जात जलाद भाई साहब भाई मनी सिंह होरां दे शरीर दा बंद बंद कट्टी जांदा सी, टोकरे विच रखी जांदा सी। सारे शरीर नूं टुक दिता गया, कट दिता गया। उंगलियां दे पोटे कटे गए,
बावां इस तरह कटियां गई जिवें पट्ठियां दा टोका कीता जांदा है। खालसा दी सारा शरीर कट्टिया गया, जलाद ने मारी है। भाई साहब होरां दी गर्दन दे उत्ते टोका, जदों गर्दन धड़ तों जुदा कीती खालसा दी 8वीं अष्टपदी दा भोग पिया, 8वीं अष्टपदी दा भोग पिया। सारा शरीर कट के जलाद ने टोकरे दे विच पाता, 8वीं अष्टपदी दे भोग पाए ने भाई साहब होरां ने। 16 अष्टपदियां सुखमनी साहब दे पाठ दियां बाकी रह गई सन। उन्हां 16 अष्टपदियां दा पाठ गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मनी सिंह होरां दे शरीर दे कट्टे बंदा बंदा ने कीता सी। उत्थे मौत कित्थे रह गई सी खालसा दी, उत्थे मौत कित्थे रह गई सी खालसा दी। अमर हो जांदे ने अमृत दे पीवण वाले, गुरु हो जांदे ने अमृत दे पीवण वाले। अमर दी दात खालसा जी त्रेता युग दे अवतार श्री रामचंद्र अपने सेवकां नूं नहीं सन दे सके। अमर दी दात खालसा दी कृष्ण भगवान जिन्होंने 16 कल विष्णु का अवतार मन्ने है, अपने मरीदां नूं भाव सेवकां नूं नहीं सन दे सके। अमृत वर्गी अमोलक दात खालसा जी हजरत मुहम्मद साहब वर्गे ईसा वर्गे पैगंबर अपने सेवकां नूं नहीं सन दे सके। माफ करना गुरु प्यारे जरा ध्यान देना, यह अमृत कित्थों मिलता है? यह अमृत सतगुरु पातशाह के पासों मिलता है। खालसा जी श्री रामचंद्र अपनी थां ते दूजा राम पैदा नहीं कर सके, कृष्ण अपनी थां ते दूजा कृष्ण पैदा नहीं कर सके, हजरत मुहम्मद साहब अपनी थां ते दूजा हजरत मुहम्मद साहब पैदा नहीं कर सके, ईसा जी दूजा ईसा पैदा नहीं कर सके। एक कृपा थी गुरु नानक पातशाह दी खालसा दी, जिन्होंने समा आउण ते खालसा दी अपना रूप गुरु अंगद दे मारन देता, जिन्हें दीवे तू दीवा जगदा। एक कृपा थी गुरु अंगद दे महाराज दी, जिन्होंने समा आउण ते अपना स्वरूप गुरु अमरदास जी नूं देता। एक दू एक करदे समा आया। एक कृपा थी गुरु अमरदास जी महाराज दी, जिन्होंने अपना स्वरूप गुरु रामदास जी नूं देता। गुरु रामदास जी ने समा आउण ते अपना स्वरूप पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज देता। गुरु अर्जन देव महाराज ने बख्शिश करती गुरु हरगोबिंद जी महाराज से, गुरु हरगोबिंद जी ने अपना स्वरूप बख्शिश कर दिता गुरु हर साहब जी नूं।
गुरु हरक साहब जी ने अपना स्वरूप बख्शिश कर दिता। गुरु हरकृष्ण महाराज नूं गुरु हरकृष्ण महाराज जी ने अपना स्वरूप बख्शिश कर दिता। गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना स्वरूप बख्शिश कर दिता। कलगीधर पातशाह जी नूं एक दो एक करदे करदे समा आया जदों 13 अप्रैल ते 1699 दी विसाखी वाले दिन ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ हिंदुस्तान के कोने कोने में चिट्ठियां सत्ते पत्र स्नेह भेजे। गुरु नानक दी संगत इस बारी श्री आनंदपुर साहब विसाखी के दिहाड़े ते दर्शन देने की कृपालता करो। कोई खास प्रोग्राम उलीकना संगत समय की इंतजार में सन। पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण अज खालसा जी हिंदुस्तान के कोने कोने दे विचों संगत होम हवा के खालसा जी श्री आनंदपुर साहब की पवित्र धरती दे पूजियां ने। अज 13 अप्रैल से 1699 की विसाखी का दिहाड़ा रागी कीर्तनकारां ने पंडाल सजा होया। पूरे आनंदपुर साहब दे विच संगतां दा 10 लाख का इकट्ठ सी। जिस पंडाल विच सिरां दी मंग कीती खालसा दी उत्ते 80,000 की गिनती सी खालसा दी। आओ गुरमुखो रागी कीर्तनकारां ने अज देखने वाली गल अज गुरता गुरगति की थां ते खालसा दी तख्त सजिया होया। दिन के 7 बजे का समा हो गया, 8 बज गए, 9 बज गए, अखीर 10 बजे का समा हो गया। संगतां देख रही ने कि कलगीधर पातशाह अज पंडाल दे विच नजर नहीं आउंदे। आओ गुरमुखो वो समा आया जदों दिन दे 11 बजे ने एकदम सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह पंडाल के पिछले पासों खालसा की बिजली की तरह निकल के स्टेज के उत्ते आए ने। खालसा की माफ करना एक शायर ने बहुत सोहना लिखिया कलगीधर पातशाह का स्टेज से आना उन्हें बयान किया अपनी कलम के नाल और लिखदा शाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते शाल मार के चढ़े स्टेज उत्ते और लानी अखां ते चेहरे नूं जड़ी होई सी। एक चेहरे दी लाडी लाल सी, एक पवित्र नैना दी लाडी लाल सी। कहंदा की लाल सी चेहरे ते जलाल सी, चेहरा चमक रहा सी, अखां दी लाली चमक रही थी। और की चमकदा सी पिया और एक चमकदी हाथ विच एक है सी, एक चमकदी हाथ विच एक है सी। ओए मस्ती और भी मथे ते मरी हुई थी। तलवार चमक रही थी, अखां दी लाली चमक रही थी, चेहरे की मस्ती चमक रही थी। पर कहंदा एक गर्ज भरी माफ करना इस रूप में कलगीधर पातशाह का आना। चेहरे की लाली चमक रही, अखां दी लाली चमक रही, हथ विच तलवार चमक रही। पर वेखण वाले एकदम हैरान हो गए क्योंकि यह कौतक पहले 9 सतगुरु पातशाह ने नहीं सी कीता। यह सिख धर्म दे विच एक बड़ा वड्डा इनकलाब सी। और जिहड़े धर्म की अरदास श्री सब तो हुंदी होवे शुरू हुंदी होवे प्रथम भगौती सिमर के। भगौती अकाल पुरख का नाम भी है, भगौती श्री साहब नूं भी कहा जाता है। जिस धर्म की अरदास भगौती तो शुरू होंदी होवे उस धर्म के बंदे आखिर कृपाण पाउण दी की लोड़ है खालसा जी। जिहड़ी पढ़ाई ए तो शुरू होंदी होवे
ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਖਿਆਲ, ਮਕਾਨ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾਰਕਰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਮਕਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਹੈ ਸੀ, ਮਾਤੀ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਹ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਭਰੀ, ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ, ਸੀਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਹੇਠ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਤਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਰਮਾ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ।
मंगार भरी आवाज विच आख्या, गुरु नानक दी संगत कोई उठे, एक सिर एक सिर एक सिर। एक बारी क्या थी, कोई नहीं उठिया। दूसरी बारी क्या, कोई नहीं उठिया। तीजी बारी कहण पे लाहौर दे रहने वाले गुरमुख प्यारे, कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों, प्रेम वाली गली चमन का चारो गली दे चारो, मार्ग में जीजा काम लगी जय। एक बारी आख्या, दो बारी आख्या, तीसरी बारी कहण ते लाहौर दे रहने वाले कतरियां दे घराने नाल संबंध रखने वाले गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई दया राम गल विच पल्लू पाया ते इस प्रेम की खेड नूं खेडण वास्ते अगे वधे ने। खालसा जी गल विच पल्लू पाउंदे हजूर दे सन्मुख हो के बेनती कीती, कलगीआं वालिया मेरा सिर लै लै। बड़ा जिक्र है, बड़ा हौसला है। सतगुरु पातशाह सिर मंग रहे ने ते सिख कह रहे सिर लै लो। हजूर ने आख्या, प्रेमिया तेरा नाम की है, तेरा ठाम की है, कित्थों दे रहने वाला है? दोवें हाथ जोड़ के बेनती की, गरीब नवाज ना ते मेरा दया राम है, जात दा खतरी होना, खतरियां दे घराने दा जन्म है, मैं लाहौर दे रहने वाला। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह लगे करो दया राम खुश कीता। ये पंजा प्यारे दे नाम सानू बहुत बड़ी सिक्ख्या दिंदे ने। कहो वाहिगुरू। भाई दया राम दया लैके आया, जिस हिरदे विच दया नहीं उस हिरदे विच धर्म नहीं रह सकता। धौल धर्म दया का पूत, धर्म नू दया दा पुत्र मनिए। हजूर लगे कल दया राम खुश किया जो लाहौर दे विच धर्म आ गया। लाहौर शहर यैर कहर सवा पैर जिसके परताए गुरु साहब ने इहो जे बचन कीते ने जो लाहौर विच दया आ गई है। दया राम मेरा धर्म जरूर अगे बढ़ेगा, पर प्रेमिया दया राम असी 3 बारी किया सिर चाहिए। दया राम कि ताड़ी पहली आवाज तेरे कन्ना विच नहीं पई, जे पहली नहीं पई तो दूजी जरूर पैनी चाहिए सी। गुरमुख प्यारे भाई दया राम आख्या पातशाह आवाजा ते मेरे कन्ना विच 3 पै गई सन। ਸਿੰਘੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ मैं सोचता था दया राम सिर ते गुरु साहब का उसे दिन का हो गया थी जिस दिन गुरु साहब के चरनी लगे था कलगियां वालिया। मैं सोचता था शरीर नाथवंत रहना नहीं चलिया जाना, शरीर नाथवंत सिर नाथवंत। आखिया कलगियां वालिया मैं सोचता था कि सतगुरु पातशाह ने नाथवंत सिर का की करना। सोचते सोचते उठ खलोता होया दया राम
अज जो सतगुरु पातशाह ने सिर मंग लिया, अज सतगुरु पातशाह किरपा भी सिरे दी करनगे, अज किरपा भी एक नंबर दी करनगे। आहा हजूर ने बंद फड़ के दिता हलूना, आख्या दयाराम लड़ेगा, आख्या पातशाह मैं लड़ांगा महाराज, मैं कलगियां वालिया खतरियां दे घराने दा जन्म है, छोटी जी लाहौर दे विच करियाने दी दुकान है, सारा दिन खंड घ्यो लूण तेल तोलदे ना निकल जांदा है, चिड़ी उड़दी दम खुश्क हो जांदे ने, सवाल है तलवार फड़ के मैदाने जंग च जावां, ये ते मेरे बस दी गल नहीं, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी छुरी करे नहीं पकड़ी, उड़े तो हम डर जाए, एक पकड़ के रण में जाए। हजूर ने आख्या दयाराम तू भी सच कहंदा, पर याद रखी चिड़ियों से मैं बाज तड़ाऊं, गिदड़ा कोलों शेर मराऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, तब गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। भाई साहब होरां फड़िया बांह तू, खालसा दी पंडाल दे पिछले पैसे एक तंबू लग्या होया सी, हजूर भाई साहब होरां बांह तू फड़ के तंबू दे विच लै गए ने, कीता तलवार दा वार, बाहर बैठी संगत ने महसूस किया जिवें भाई साहब भाई दयाराम होरां दा सीस सतगुरु पातशाह ने तलवार दे नाल धड़ तो जुदा कर दिता होवे, खून ना लिबड़ी खून ना भरी तलवार लेके दूजी बारी स्टेज ते आए ने। अजकल 1.5 आने का लखारी ते 2.5 पैसे की किताब होंदी है, लिख देंदे ने कि 10वें पातशाह ने बकरे झड़काए सन खालसा दी। दास आप जी बेनती करके पूछ सकदा कुछ? पहली गल गुरमुखो ए दसो गुरु असली सी कि नकली सी? जे ते गुरु नकली हुंदा अज दे किसे पखंडी गुरु वर्गा चन्ना मन्ना कुर मैं तेरा चेला ते तू मेरा गुर। जे गुरु नकली हुंदा, नकली गुरु पखंड करके दिखा दिंदा, असली गुरु नूं पखंड करने की लोड़ की सी खालसा जी? फिर कोई पढ़िया लिखिया सज्जन इस गल का जवाब देवे, जदों कलगीधर पातशाह ने स्टेज ते सिरां दी मंग कीती है, गुरु साहब ने बकरियां दे सिर मंगे सन या सिखां दे सिर मंगे सन खालसा जी? अब बोलते क्यों नहीं खालसा जी? गुरु स्टेज ते सिखां दे सिर मंगे, पर्दे दे विच गुरु बकरे झड़का देवे, ਇਹਦਾ मतलब गुरु पखंड भी करदा ते गुरु झूठ भी बोलदा। ठीक है कि गलत है? माफ करना, खालसा दी बाणी विच सब तो वड्डा पाप झूठ नूं दस्सिया। सच पर तप नहीं, झूठ बराबर गुरमुखो मन लो, अंग्रेजी का एक शब्द है सपोज करो। सपोज करो कि सतगुरु पातशाह ने बकरे झड़काए सन, सपोज करो, मान लो सिर तो दिता ने बकरियां ने, सिक्खी सानू किवें मिल गई? फिर तो सिक्खी बकरियां नूं मिलनी चाहिए। क्यों? उन्हें सिर दिते सन खालसा जी? नहीं। फिर मान लो सपोज कर लो कि गुरु साहब ने बकरे झड़काए सन, मान लो कि गुरु साहब ने बकरे झड़काए सन, खालसा जी सिर दिते ने बकरियां ने, एदा मतलब कि सानू सिक्खी बकरियां दे सिर बदले मिली है। तुहाडी आत्मा मनदी खालसा जी? आहा बकरे नहीं तन झड़काए, सगों अपनी तलवार दे नाल अपने सिखां दे सिर धड़ तो जुदा कीते सन खालसा जी। दूजी बारी स्टेज ते आए ने, आके आख्या गुरु नानक दी संगत एक सिर होर चाहिदा। जदों दूजी बारी स्टेज ते आए ने, इस प्रेम की खेड दे विच अगे वधन वाले गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई धर्मचंद जी दयाराम दया लैके आया। जिथे दया आनी सी उत्थे धर्म ने आना सी। खालसा जी कहो वाहिगुरू, क्योंकि दया नूं धर्म दी मां मन्ने है। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई धर्मचंद उठ खलोते ने। ये 5 गुण ने चक दे विच जरा ध्यान देना। 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ
पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤਾਂ याद कर लेना, पर पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, जरा ध्यान देना। जदों दूजे सिर की मंग की गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई धर्मचंद दिल्ली के रहने वाले गल विच पल्लू पाया ते उठ खलोते हैं। सतगुरु पातशाह ने सन्मुख हो के बेनती की, कलगियां वाले आ मेरा भी सिर लेना। हजूर ने पुछना किया, प्रेमिया तेरा नाम की, तेरा ठाम की है? आख्या पातशाह नाम तो मेरा धर्मचंद है, जट्टां दे घराने का जन्म है, मैं दिल्ली दे रहने वाला। आख्या कुछ किया धर्मचंदा, ओ दिल्ली जिथे औरंगजेब ने कुरान शरीफ से हजरत मुहम्मद की कसम खाधी है, बच्चा हिंदू का रहन नहीं देना, शराब आ जाओ काफरो, बच्चा हिंदू का रहन नहीं देना, शराब आ जाओ काफरो। धर्मचंदा खुश किया, दिल्ली जिसे औरंगजेब ने कसम खाधी कि हिंदू धर्म का मलिया मेड़ करके रख देंगा। आख्या धर्मचंदा जे दिल्ली में धर्म आ गया, एक औरंगजेब तक की लखा औरंगजेब मिल के भी हिंदू धर्म का मलिया मेड़ नहीं कर सकते। सतगुरु पातशाह लगे कन धर्मचंदा बंद फड़ के हजूर ने हलूना दिता है। आख्या धर्मचंदा लड़ेगा? भाई साहब हस पे आख्या कलगियां वालिया ये की पूछे जी, लड़ांगा पातशाह जट्टां दा काम की होंदा, जट ते वट पिछे लड़ के मर जांदा है। कलगियां वालिया तेरे बचना से लड़ूंगा भी मरूंगा भी, जो कुछ करना पिया वो भी करूंगा। हजूर ने बंद फड़ के सतगुरु पातशाह तंबू च लैके तो जेडे मेरे वर्गे कड़ाह खाने हैं ना, वो खिसकने शुरू हो गए। जेडे कहते बकरे झड़काए ने, कोई कहता सतगुरु पातशाह की उम्र छोटी है, गुरता गुरगति की शक्ति संभाली नहीं गई, क्यों वाहिगुरू। कोई कहता कि सतगुरु पातशाह ने चंडी की बाहर उल्टी पै गई है। अपने अपने ख्यालों के मुताबिक मन घड़ंत गल्लां कर लग पे ने। आहा खालसा जी हजूर तीजी इधर भाई साहब भाई धर्मचंद जी होरां दा शीश भी धातु जुदा कर दिता गया। दूजी बारी तो बाद तीजी बारी खून ना डिबड़ी तलवार ला के फिर स्टेज से आए ने, पर धर्म किहदा बचदा जिहड़ा हिम्मत कर लवे, कहो वाहिगुरू। आहा तीजा सिर की मंग की झूरां दे घराने नाल संबंध रखण वाले गुरमुख प्यारे भाई हिम्मत राय इस प्यार की खेड अगे वधे, कहो वाहिगुरू। हिम्मत राय अगे वधे ने। आहा पूछया सी प्रेमिया तेरा नां की है? ये पंजे प्यारे पंजे गरीब घरां दे सन, कहो वाहिगुरू। गुरु नानक दे घर विच इलैक्शन नहीं, इत्थे सिलैक्शन है, कहो वाहिगुरू। जे गुरु साहब कहंदे वोटां पैणियां ने, शायद इन्हां पंजां प्यारियां दा नंबर ना लगदा, ना लगदा। भाई मनी सिंह ने किहड़ा इलैक्शन लड़िया सी, भाई तारू सिंह ने किहड़ा इलैक्शन लड़िया सी। गुरु नानक दे घर विच सेवा करन वाला, कुर्बानी करन वाला हमेशा तू जानिया जा रहा है, आने वाले समय विच भी जानिया जांदा रहेगा। खालसा जी सतगुरु पातशाह ने पूछा प्रेमिया तेरा नाम की है? आख्या पातशाह मेरा नाम भाई हिम्मत राय है, झूरां दे घराने नाल संबंध रखदा। आहा आख्या गरीब नवाज मेरा भी सिर ला लो।
हजूर ने आख्या खुश किया, हिम्मत राय खुश किया। धर्म नूं बचाउण वास्ते हिम्मत चाहिए, हिम्मत भी चाहिए है। माफ करना, हिम्मत चाहिए है। भाई साहब नूं बांह तों फड़ के लै गए तंबू विच, कीता तलवार दा वार, आप जी दा शीश भी धड़ तों जुदा किया गया। 80,000 की गिनती दे विच खालसा जी एवें 5-4,000 बंदे दा इकट्ठ रह गया खालसा जी। कई माता गुजरी नूं जाके कहंदे ने, माता गुरु साहब नूं समझाओ जाके, तुसीं ते कहंदे सी कि सतगुरु पातशाह एक दिन जालम तुर्क राज दीआं जड़ां पट के रख देणगे। माता उन्हां जालम तुर्क राज दीआं जड़ां की पटणीआं ने, माता उन्हां तां अपने सिख झटकाउणे शुरू कर दित्ते ने। स्टेज ते आउंदे ने, एक सिख दे सिर दी मंग करदे ने। एक सिख उठ खलोंदा, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਲੈ ਨਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭੋਲੀਏ। माता ने आख्या मसंदो, पूजा का धन खा खा के तुहाडी मत मारी गई है। तुसीं सतगुरु पातशाह दे शंके करदे हो, किंतु परंतु करदे हो। उन्हां नूं छोटी उम्र दे दसदे हो। माता गुजरी ने आख्या अकल दे अन्यो मसंदो, तुहानू पता होना चाहिए कि सतगुरु पातशाह जी गुरु नानक पातशाह की शक्ति काम कर रही खालसा। आहा चौथे सिर की मंग की, हिम्मत कौन कर सकता? कहो वाहिगुरू। हिम्मत कौन कर सकता? जेड़ा मोह नूं काम करे। कहो वाहिगुरू। जेड़ा मोह घट करे। चौथे सिर की मंग की तो गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मोहकम चंद उठ खलोते सन खालसा जी। शिंबिया के घर आने ना जन्म संबंध रखने वाले खालसा जी। आख्या पातशाह मेरा भी सिर ला लो। आप जी का शीश भी धड़ तों जुदा किया गया, जिहदे च 4 गुण आ जाण। कहो वाहिगुरू। वो साहब नाल जुड़ सकदा। कहो वाहिगुरू। ये 5 प्यारिਆਂ दे ना तुहानूं सिक्ख्या दे रहे ने, जिहदे विच दया आ जाए उत्थे धर्म आ सकदा। धर्म ओहदा बच सकदा जिहड़ा हिम्मत करे। हिम्मत वो कर सकदा जिहड़ा मोह नूं काम करे। जिथे 4 गुण आ जाण साहब नाल ओ जुड़ सकदा, जिहदे विच 4 गुण आ जाण। 5वें प्यारे भाई साहब भाई सब चंद ये आए ने खालसा जी। कोई कोई लंघदा प्रेम वाली, कोई लंघदा प्रेम वाली गली। प्यारे गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई साहब चंद जो अमृत छक के साहब सिंह बने सन, नाइया के घराने नाल संबंध रखते सन खालसा जी। दमदमी टकसाल के मुखी ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जीवन पढ़ के देखो, ये पंजे क्यों खड़े होए? इन्हां पंजां दी पिछली बड़ी तपस्या सी खालसा जी। कहो वाहिगुरू। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई दया राम
ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮਚੰਦ ਜੋ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜੋ ਅਮਰ ਛਕ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ। गुरु की संगत जिस फंदक ने कृष्ण भगवान के चरण दे विच खालसा दी, माफ करना गुरमुख प्यारे भाई साहब हिम्मत राय जो अमर छक के खालसा दी, माफ करना गुरु की संगत हिम्मत सिंह बने। चतुर्भुजी का अवतार चतुर्भुजी का शिकार करने वाले एक कदी फिर विचार करांगे, शिकारी का अवतार सन। चौथे नंबर से गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मोहकम चंद, भगत नामदेव का अवतार सन खालसा जी, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ दी बाणी विच दर्ज इन्नियां कमाईयां वालियां नूं जन्म लैके ते खालसा दी फिर अमर छकना पिया खालसा जी। गुरमुख प्यारे भाई साहब चंद अमर छक के जो साहब चंद तू साहब सिंह बने, गुरमुख प्यारे भाई साहब चंद जी गुरमुख प्यारे भगत सैन नाई का अवतार सन खालसा जी। आओ खालसा जी पंजा सिरां दी मंग करके ना कलगियां वाले पातशाह 6वीं बारी स्टेज ते आए ने। जदों 5वें सिर दी मंग कीती, पंडाल च एवें 40-50 बंदे रह गए सन। आहा माफ करना, इन्हां पंजा सिरां दी मंग करन तो बाद खालसा दी लाइक के सरसा दरिया का पानी पढ़ के जपजी जाप सवैये जो पई आनंद साहब दी बाणी कीता अमर दा बाटा तैयार। पंजा प्यारे नूं लै के जल दे छिट्टे मारने कीते, कीता सारा जीत। 5 कार बख्शे खालसा दी, 5 चुले इन्हां पंजा प्यारे ने मूंह दे विच अमर दे मारने कीते। 3 किस्म का अमृत मनिया गुरु घर च। पहले नंबर से संस्कार अमृत जिन्हों खंडे बाटे का अमृत कहा, दूजे नंबर से नाम का अमृत जो अमर छकण तो बाद नाम की कमाई करके प्राप्त होता है। तीजे नंबर से ब्रह्म ज्ञान का अमृत। इन्हां 5 प्यारियां की कुर्बानी वड्डी सी, क्योंकि इन्हां सिर दिते सन खालसा जी। सतगुरु पातशाह ने 5 चुले इन्हां दे मूंह दे विच अमर दे मारने कीते। आख्या खालसा दी बोलो वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी दी फतेह। 5 चुने नेत्रा विच, 5 चुने केसां विच इन्हां 5 प्यारियां नूं नाम दा अमृत, इन्हां 5 प्यारियां नूं संस्कार अमृत, खंडे बाटे दा अमृत, नाम दा अमृत ते ब्रह्म ज्ञान दा अमृत तिन्ने इकट्ठे बख्शिश कर दिते खालसा दी, क्योंकि इन्हां दी कमाई वड्डी सी। देख के केस क्या दशमेश जी ने जाओ बख्शियां अज सरदारियां ने ते कंगा फेर दे सदा याद रखना, कदे चलनियां सिरां ते आ रही ने। जिद्दी तेग मजलूब दी कड़ी रखिया कड़ा नहीं, एक कड़ियां मारियां ने। जिद्दी कज जट सच विच रही पूरा, इहदे विच बरकतां सारियां ने। 5 प्यारियां नूं तैयार बार तैयार करके ना खालसा दी कहो वाहिगुरू, अमर दी दात दे के ते स्टेज ते लिया के खड़े कर दिता, कहो वाहिगुरू। हुण मेरे वर्गे कई कहंदे सन मैं क्यों ना खड़ा हो गया, कई कहंदे सन मैं क्यों ना खड़ा हो गया। माफ करना खालसा दी कलगियां वाले पातशाह लगे कर सिंघो कल फिर एकदम संगत का इकट्ठ होया। तो जेरे मेरे वर्गे पंडाल च उठ के चले गए सन, एक बारी फिर पंडाल दे विच संगतां दा खजा खज बड़ा भारी इकट्ठ होया। स्टेज दे उत्ते आके खड़ के खड़े इन्हां 5 नूं सतगुरु पातशाह ने आख्या, गुरु नानक दी संगत मेरे 5 प्यारे, कहो वाहिगुरू 5 प्यारे। प्यारे क्यों आख्या प्यारे? आख्या गुरु नानक दी संगत ए मेरे 5 प्यारे ने, जिन्हां मेरे प्यार विच आके अपने सिर दिते ने, जिन्हां मेरे प्यार विच आके अपने सिर दिते ने मैनू। गुरु साहब लगे कर गुरु नानक दी संगत। गुरु नानक साहब के समय एक बाबा लैना पास होया सी, सिक्की किन्नी बढ़ गई है। गुरु नानक दी संगत मेरे समय 5 पास होए ने, भला मेरा पंथ अगे क्यों बढ़ेगा खालसा जी? पंजां नूं अमर दी दात दे के दया राम तू दया सिंह, धर्मचंद तू धर्म सिंह, हिम्मत राय तू हिम्मत सिंह, मोहकम चंद तू मोहकम सिंह, साध चंद तू साध सिंह,
ना रखे ते पंजां नूं खालसा पंथ दा खिताब बख्शिया। आख्या खालसा जी अज जो तुसीं पंजे करया करोगे मैनूं मंजूर होवेगा। हजूर पढ़ी जांदे तन पीओ बोल खंडे तार होवे जन्म तुहे माजी। पीओ बोल खंडे तार होवे जन्म तुहे माजी। गुरु प्यारे पंजा प्यारे की खुशी का टिकाणा ना रहा। पढ़ी जाते सन गुरु के टक अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया अमृत गुर ते पाया। पासों आप अमृत छकिया। आख्या सी दया सिया तुसी अमृत छक के सिंह सज गए पर मेरा नां ते अजे गोबिंद राय तुरिया हूं। दया सिया तुहानू अमृत दी दात दे के दया राम तू दया सिंह बना सकदा। धर्म चंद तू धर्म सिंह बना सकदा। हिम्मत राय तू हिम्मत सिंह मोहकम चंद तू मोहकम सिंह साहब चंद तू साहब सिंह बना सकदा। पर अमृत छकन तू बिना गोबिंद राय अपने आप नू गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह नहीं बना सकदा। खालसा दी ते आख्या पातशाह माफ करना। सतगुरु पातशाह लगे कि खालसा जी सानू भी अमृत की दात दिओ। ते भाई दया सिंह जी लगे कि पातशाह तुहानू पता है ना असी किवें अमृत लिया। अमृत मैनू भी दिओ पंथ खालसा दी गोबिंद आख्या पंजां प्यारियां नू और मैनू पंथ दे इश्क दी चढ़े रंगण मैं भी मान ला रब्बी हलारियां नू। ते पंजां प्यारे ने आख्या पातशाह तुहानू पता ना किवें अमृत लिया। ना असा मुफ्त लिया ते ना असा मुफ्त देना है। जेड़े कई दिन बकरे झटकाए ने ना तो मुफ्त लिया ते ना अच्छा मुफ्त देना। ये तो मिलता सिर दे बोबिया वारियां नू। साध संगत जी सतगुरु पातशाह लगे कि अमृत जो दात अमृत दी जो खालसा दी बोला बोलिया ते पूरने पा दियांगा मैं। और तुसी ते एक सिर दे के अमृत लिया मैं ते सब सरबंस लटा दियांगा मैं। तुसी एक सिर दी गल कर दिओ मैं सारा सरबंस कुर्बान कर दियांगा। खालसा जी पंजा प्यारे पासों अमृत की दात लेके अपना नाम गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह रखिया। तो गुरु प्यारिओ सारे अमृत छको। कल अमृत का बाटा तैयार होना। गुरु की संगत इसे करके दुनिया से आए हैं। कल का आखिरी दवाना इसे बर्मिंघम का उदू बाद अगे फिर प्रोग्राम दिते हुए ने। फिर कभी समा बनया आज के दर्शन करांगे। समय नहीं है
खालसा जी दुनिया बहुत लंबी है, इन्हें की शब्द प्रवान करो। होइयां भुल्लां दी माफी। जीव हाँ भुल जांदा ना, समरथता है नहीं। लोग की कहते हैं असीं तां कदी गलती नहीं करते जी, वो तो बड़ियां गलतियां करता है जी, वो बाणी गलत पढ़ता जी, ग्रंथी सुन पाठ गलत आउंदा है जी, कीर्तनियां पाठ गलत करता। खालसा जी जिहड़ा गलती करता नीवा हुंदा, जिहदे कोल गलती नहीं हुंदी हंकार ना उच्चा हो जांदा। आपां तां नानक नीवा जो चले लगे ना तत्ती भाव जियो। असीं तां मत्था टेकण समय कहिंदे पातशाह गलतियां अगे बड़ियां कीतियां ने ते माफ अगे भी तुसीं कीतियां ने, अगू भी मैं करनियां ने ते अगू भी तुसीं माफ करनियां ने। मेरे ते तेरे च फिर फर्क भी की होया? यही ते फर्क है। तुम कहिए तो जगत गुर स्वामी, हम कहिए तो कल युग के कामी। सच्चे पातशाह कृपा करो, सच्चे पातशाह। पर एक गल याद रखियो, कहो वाहिगुरू। कई बारी बच्चे नूं कुछ नहीं आउंदा, पर रेगुलर इन रूटीन सारा साल स्कूल च जांदा है, पर बच्चे नूं आंदा कख नहीं। पर मास्टर कहता इहदा रिकॉर्ड वेखो, मास्टर वेखदा इहनूं आंदा कख नहीं, पर इहदा स्कूल सारा साल आउंदा, मास्टर रैती पास कर दिंदा। ओ तुसीं भी सारी जिंदगी गुरु ग्रंथां दे चरनां च आओ, तुहानूं गुरु नानक रैती पास कर थोड़ा भी पार उतारा हो जाऊगा। ऐसे आउणा ना छड्डो। खालसा जी इस गैर हाजिर ना हो, हाजरी ते पवाई चली गए ना। महाराज सतगुरु पातशाह सदा बख्शदे ने। गुरु कदे अपने सिख ते नाराज नहीं हुंदा। जे साध संगत जी माफ करना, सुत अपराध करता है जेते जननी चीत न रख तेते। मां कदे भी बच्चे दे अवगुण याद नहीं रखदी। साध संगत जी जे किसी दा नलायक पुत, मैनूं पता तुसीं बड़े उतावले हो, पर खालसा जी एक सेठ दे दो पुत सीगे, एक लायक सी एक नलायक सी। माफ करना, सेठ ने दोनों पुत्तां नूं बड़ा धन दिता, जाओ फॉरन जाओ व्यापार करके आओ। इक्को जिहा धन दिता, एक ने उस धन नाल बड़ा साथ बड़ा व्यापार शुरू कर लिया, करोड़ां रुपये की आमदन विच वाधा कर लिया। खालसा जी करोड़ां का फायदा हो गया। जेड़ा दूजा सी मेरे वर्गा महाराज किते शराबा पी, किते माड़े पासे जा, किते कुछ कर, सारा धन बर्बाद कर लिया उन्हें। इक्को वर्गा धन दिता। हुण साध संगत जी जिहड़ा सेठ दा पुत माफ करना बड़ा वादा करके लियाया, बड़ा फायदा वट के लियाया उस पैसे नाल जो प्यो ने दिता सी। वो जदों घर आया सेठ नूं खुशी हुई, खुशी तो होनी थी, पर जिहड़ा दूजा सी पैसा सारा बर्बाद कर गया, सारा बर्बाद पैसा हो गया। जदों सारा पैसा बर्बाद हो गया, वापस आया तो शहर तो बाहर आके तो बह गया। कहंदा प्यो दे मत्थे किहड़े मूंह नाल लगा, प्यो ने धन दिता सी किहड़े मूंह नाल लगा, सारा धन रोल आया। एक साथ गरीब दे बंदे नूं कहंदा भरा मेरे कोल 4 आने दे पैसे ने, जा मेरे प्यो नूं कह तेरा नलायक पुत आ गया। कह दो गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जो विद हमरी होती मेरे सतगुरा, साथ हर तुम जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, सतगुर शरण कीरे हम खाते। माफ करना सच्चे पातशाह दे चरणा जी करी पढ़ दो ना। खालसा जी हुण जरा ध्यान देना गुरु प्यारिओ, ओ नलायक ने जो 4 आने दे पैसे दिते ना गरीब नूं, कहंदा जा मेरे प्यो नूं कह कि तेरा नलायक पुत आ गया, सब कुछ बर्बाद करके आ गया। सेठ नूं लगा पता, जदों जाके गरीब ने दस्सिया सेठ नूं लगा पता भी नलायक पुत आ गया जी। कहंदा जी तुहाडा जी, कहना कित्थे सेठ, कित्ते सेठ नूं चाह चढ़ गया, मेरा नलायक पुत आ गया। साध संगत दी सेठ ने बैंड बाजे वाले नाल गल च ढोल पा लिया। सेठ नचदा हुंदा लैक दी खुशी ते हुंदी मां बाप नूं, पर जदों किसे दा नलायक सुधर जांदा उस मां बाप नूं पुछ के वेखो कितनी खुशी हुंदी। जिस मां बाप दा नलायक पुत सुधर जाए, राह ते आ जावे, ओनूं कितनी खुशी हुंदी। खालसा दी सेठ ढोल भंगड़ा मारदा आ रहा है। सत लोकी कहंदे ने सेठा एडी खुशी ते लैक दे आउण दी नहीं सी कीती। ओ कहंदा ते लोग कहंदे तेरा नलायक पुत आया, तू ढोल मारदा जांदा है, भंगड़ा पाउंदा जांदा है। कहंदा नलायक पुत दे आउण दी इन्नी खुशी, कहंदा मैनू इस करके खुशी मेरा पुत आ तां गया। ओए आ जाओ तुसीं भी सतगुरु पातशाह बख्श देणगे। एक वारी ते कह दिओ और रुलदे फिरदे दी बात ना पुछदा, बात ना पुछदा कोई, रुलदे फिरदे दी बात ना पुछदा, बात ना पुछदा कोई, रुलदे फिरदे दी बात ना
बात नहीं पूछता, बात ना पूछता, रोंगा गुरु जी बात ना पूछता, बात ना पूछता। ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸੁ ਜਨਮ ਸਵਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਤ ਸੁ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਬਾਜਾ ਬਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਬਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਬਾਜੇ ਵੱਜਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ। ਨਾ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੁਰ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਉਹ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਣਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਦਾਸ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਜੂ ਹੋਏ। ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਲਣੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ। ਆਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਦੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਤੋਤਰ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਹੈ।
महला तीजा नंद को का प्रसाद तुम पिया मेरी